Morning students, hope you all are doing good at your home. So today we are going to start with the new topic, that is compounds, and it is the last topic of the chapter. Okay, and after this our second chapter will be over. Okay, so what is our today's topic? That is compound. So what are compounds? Okay, a compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. ओके, तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो किससे बनते हैं, जो कि दो या दो एलिमेंट के केमिकली कंबाइन होने से बनते हैं. ओके, केमिकली कंबाइन होने से बनते हैं और वो भी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, यानी एक फिक्स्ड रेशियो में. जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो जो सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन द डेफिनेशन. A compound is a substance composed of two or more elements chemically. So okay students, a compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. Okay, तो जब दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ में इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, देन द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज अ कंपाउंड. ओके, so now I am going to take one example from which it will be more clear. For example, we are taking water. Okay, so water is a compound. Water क्या है? एक compound है. And which elements are present in water? See, this whole is a compound. Water is a compound. And which elements are present in water? Hydrogen. See, H for hydrogen. And secondly, oxygen. So what is water? Water is a compound formed by the chemical combination of hydrogen and oxygen in a fixed proportion. Okay, तो वाटर क्या है? वाटर एक कंपाउंड है जो किससे फॉर्म हुआ है? दो एलिमेंट से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से ये फॉर्म हुआ है. एंड सो students, you all will be bothering about that what is this fixed proportion. Okay, so it means that if we are taking water from any source, see, if we are taking water from any source, then they will combine in a ratio of 1:8. Okay, and how is it possible? I will show you. See, what is the mass of hydrogen? It is 1 gram and 2 hydrogen atoms are there, so 2 grams. And what is the mass of one oxygen atom? 16. So 1 into 16, it is 16. Now see, its simplest ratio is how much? 1:8. Okay, so ये जो लास्ट वाली लाइन है कि दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो इसका ये मतलब है कि इफ़ वी आर टेकिंग वाटर फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से लें, रिवर, पॉन्ड या फिर कहीं से भी हम वाटर को लेते हैं, तो उसमें जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो कंबाइनिंग रेशियो होगा, दैट विल बी अ फिक्स्ड रेशियो. वो कैसा होगा? फिक्स्ड होगा. वो 1:8 ही होगा. ओके, सो दिस सो द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज दिस. ओके, कि जब भी वाटर किसी भी सोर्स से हम लें, that we are taking from a sea, pond, river, anything or anywhere, then they will combine in a fixed ratio, and that fixed ratio is equal to what? 1:8. Okay students, so now we are going to discuss some important points about the compound. So our first point is elements react to form compound. Okay, तो ये तो हमें पता ही है कि एलिमेंट रिएक्ट करते हैं आपस में क्या फॉर्म करने के लिए? कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए.
तो एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं क्या फॉर्म करने के लिए, कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए. ओके, नाउ अवर सेकेंड पॉइंट इज दिस, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड. ओके, okay, so now we are having our second point, and what is the meaning of second point? See, the composition of each new substance is always fixed. ये तो अभी पढ़ा ही था हमने कि जो सब्सटेंस फॉर्म होगा उसका कॉम्पोजिशन कैसा होगा, फिक्स्ड होगा. फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर को हम किसी भी सोर्स से लें, फ्रॉम रिवर, पॉन्ड और सी, द कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी in what ratio? It will be a fixed ratio, that is 1:8. Okay, so the meaning of the second point is this only, that they combined in a fixed ratio only. Now a third point is the new substance has totally different properties. Okay, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसकी completely different properties होती हैं. तो थर्ड पॉइंट क्या है कि जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होंगी. ओके, वो रिएक्टेंट की जैसी नहीं होंगी. नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. ओके, तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, अगर इससे हमें एलिमेंट्स को ऑब्टेन करना है तो वो फिजिकल मेथड से पॉसिबल नहीं है. फॉर दैट वी हैव टू यूज इधर केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. Okay students, so what does the fourth point says? That the constituents can be separated only by chemical और electrochemical reaction. तो जो हम constituents हैं उनको किस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से. दे कैन नॉट बी separated by any physical mean like filtration, sedimentation, decantation, anything else. Okay, so they can only be separated by a chemical reaction or electrochemical reaction. For example, our compound is water. तो water में से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को filtration या फिर sedimentation या फिर decantation process से हम separate नहीं कर सकते हैं. Okay, for that what we will have to do? We have to pass the electricity through water and then hydrogen and oxygen gas will decompose. Okay, so see, when we are passing electricity through water, then what happens? It decomposes to give us what? Hydrogen gas and oxygen, H2 and O2. Okay, now let us balance this equation. See here, 2 oxygen atoms are there, here only 1, so 2, and now here 4 hydrogen atoms are there, so C. Okay, तो हमें वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ी. ओके, सो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इज. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट कि हम उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. फॉर दैट वी हैव टू ईदर परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शन और एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो हेयर our second chapter ends, and from tomorrow we will start with the third chapter. Okay students, so now let us quickly recall what we have studied today. So what are compounds? Compounds are the substance composed of 2 or more elements. Compounds क्या होते हैं, वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से फॉर्म होते हैं और किसी फिक्स रेशियो में वो कंबाइन होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर एक कंपाउंड है, किससे फॉर्म हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन होते हैं, 1:8 में कंबाइन होते हैं, तो वाटर फॉर्म होता है. ओके, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड, एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं कंपाउंड फॉर्म करने के लिए. ओके, द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड. तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसका कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहेगा. ओके, द न्यू सब्सटेंस इज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. तो जो नया सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती हैं. ओके, एंड द फोर्थ पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. तो जो हमारे जो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कैसे सेपरेट हो सकते हैं, वो या तो केमिकल रिएक्शन से या फिर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से सेपरेट हो सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो this was the example where we have passed electricity through water and it decomposes to give us what? Hydrogen and oxygen gas. Okay students, so that's it for today, and tomorrow we will be starting with our new topic or with new chapter. Okay, so read about that from your books. Okay students, goodbye.